ਬਦਲ ਰਹੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ, ਮਲੇਰੀਆ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਖਾਸਕਰ ਡੇਂਗੂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਨਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਸਾ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 200 ਮਰੀਜ਼ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਡੇਂਗੂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਘਟਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਜਨੀਕ ਬਾਪੂ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਡੇਂਗੂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖੂਨਦਾਨ ਅਤੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਡੇਂਗੂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਐਮ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਇਨਸਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ, ਟਾਈਫਾਇਡ, ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਡੇਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਹ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CMO ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਡੇਂਗੂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪੱਖੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ तमाम ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ फैलता है तो किमें सानू प्रिकॉशनस लेनियां चाहिए हैं, उन्होंने नाल गलबात करते हैं। जैसा हमने बोला कि मौसम बदलने से वहाँ कि पिछले 1-2 महीने से हमारे पास काफ़ी मरीज आ रहे हैं जिनको बुखार और जिनके प्लेटलेट डाउन आ रहे हैं। उसमें से जो कार्ड टेस्ट करते हैं डेंगू का वो भी काफ़ी लोगों का पॉजिटिव आ रहा है और एलाइजा टेस्ट इससे सिविल हॉस्पिटल भेजते हैं तो उनमें भी पॉजिटिव आ रहा है डेंगू का। तो डेंगू जिनको हो जाता है कि जैसे मलेरिया को ख़त्म करने के लिए क्विनीन की गोली आती है, डेंगू को ख़त्म करने की कोई दवाई नहीं आती। डेंगू को जो वायरस है उसको शरीर खुद ही ख़त्म करता है, तो जब तक ख़त्म नहीं करता तब तक इसमें सेल जो है घटने की संभावना रहती है और बुखार आता रहता है, उल्टियाँ भी लग जाती हैं। तो इसमें अगर सेल कम हो तो सेल चढ़ाना पड़ता है। हमारे अस्पताल की बात करें तो हमारे अस्पताल में जो सेल है वो अवेलेबल हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि बाहर अस्पताल में जाओगे, किधर भी ब्लड बैंक में जाओगे तो आपको साथ ही लेके आना पड़ेगा जो पहले ब्लड दे, ठीक है ना, डोनर जो कोई ब्लड डोनेट करे उसके बदले में वो प्लेटलेट देते हैं। पर हमारे यहाँ पे गुरुजी की शिक्षा पे चलते हुए लोग वैसे ही इतना ब्लड डोनेट करते हैं। ऐसे ट्रू ब्लड पंप पिताजी ने उनको वो भी दिया हुआ है, ख्याति भी दी हुई है, तो ब्लड डोनेट करते हैं, उसी ब्लड से प्लेटलेट हम लेते हैं। तो यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट जो है प्लेटलेट मिलते हैं।
तो यहाँ पे इस समय अगर आप बात करें तो अंदाजन के हिसाब से 40 से 50 पेशेंट्स के बीच में ऐसे पेशेंट्स हैं इनके प्लेटलेट डाउन है, जो कि उसमें से जो है डेंगू भी हैं पेशेंट्स। तो ये चल रहा है अभी हमारे। देखो किफ़ायती तो बिल्कुल है ही। आप ये मान के चलिए कि हमारा जो 24 घंटे का जनरल वार्ड का खर्चा, ठीक है ना, डॉक्टर फीस, नर्सिंग फीस, बेड का खर्चा मिला के 900 रुपये ही है, ठीक है, जो कि बहुत कम है। आप शहर में भी जाएँ तो 2000 रुपये तो कम से कम जो है बेड चार्ज लेते हैं। पर हमारा कभी ये मकसद नहीं रहा कि ज़्यादा पैसा कमाना है। हमारा मकसद ये रहा है कि भाई मरीजों की सेवा करें ताकि गरीब से गरीब मरीज भी आके अपना इलाज यहाँ पे करवा सके। जहाँ तक डेंगू के इलाज की बात है, जैसे मैं बताया कि भाई डेंगू वायरस को ख़त्म करने की कोई दवाई नहीं आती। हाँ, पर जो बुखार आ रहा है तो बुखार का इलाज, उल्टियाँ हैं तो उल्टियों का सेल चढ़ाने की ज़रूरत है तो सेल चढ़ाना, तो जो भी उसको संभावना है उसको ठीक करने के लिए वो हम कर पाते हैं। हाँ, पर हमने ये बोला कि घर के लिए जहाँ तक है, बाकी आप बचने की अगर बात करें कि डेंगू से बचाव की, तो ये जो है दिन में जो है मच्छर काटता है, ठीक है, तो आप दिन में जो है पूरी बाजू के मतलब शरीर को ढक के रखे, कहने लगे पूरी बाजू की कमीज पहने, निक्कर ना पहने, पैंट पहने, कुर्ता पजामा पहने, लेडीज़ जो है सलवार कमीज़ जैसे भी है क्योंकि ढक के रखें ताकि बाजू पे ना काट पाएँ, ठीक है, ये चीज़। दूसरी चीज़, पानी ना इकट्ठा होने दें। जैसे छतों में से बारिश हुई, मानो छतों में पानी इकट्ठा हो गया, क्योंकि ये जो है ताज़ा पानी में पनपता है इसका जो मच्छर है, तो ताज़ा पानी किधर भी इकट्ठा ना होने दें। किधर भी इकट्ठा हो उसको फेंक दें। अपने आसपास देखें छपरा है या पानी जहाँ पे इकट्ठा हुआ है अगर, तो उसके ऊपर थोड़ा मिट्टी का तेल डाल दें ताकि उस पर मिट्टी की तेल की एक परत बन जाए, तो जो मच्छर है वो कीटाणु जो अंदर है वो मर जाएंगे। तो ऐसे ही किधर भी इकट्ठा ना होने दो पानी, ठीक है। ऐसे गमलों में पानी डालते हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, घर में गमलों में पानी डाला, नीचे पानी थोड़ा इकट्ठा हुआ, वो देखा ही नहीं, उसमें ही डेंगू का मच्छर उग सकता है। तो पानी भी हफ्ते एक बार उसको बिल्कुल साफ़ कर दें ताकि जो कीटाणु उसमें उग रहे हैं वो वहाँ पे ख़त्म हो जाए। हमारे यहाँ पे काफ़ी पेशेंट्स हैं जो पंजाब से, ठीक है, राजस्थान से और दिल्ली से, ठीक है, यहाँ से आ रहे हैं। दूर दूर से पेशेंट आते हैं हमारे यहाँ पे इलाज कराने, ठीक है। सिरसा के भी हैं, डबवाली से सिरसा के भी कुछ पेशेंट्स हमारे पास हैं। सिरसा में जो है पेशेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि एक मैंने बताया ना प्लेटलेट अवेलेबल हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, और दूसरा खर्चा भी बहुत कम है, किफ़ायती है। तीसरा उसके ऊपर भी जो ख्याल रखा जाता है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नर्सिस का देखें या डॉक्टर्स का देखें, 24 घंटे डॉक्टर अवेलेबल रहना, ठीक है, तो वो सब जो है सुविधा इस अस्पताल में उपलब्ध है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।